Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to ABSEC's online support program. As you all know that this is inshallah our last week of online support program, and today is the first day, Monday. So let us get started with today's lecture. Today inshallah we will be almost completing our exercise 3.4. Why am I saying almost? Because there would be just three parts of this exercise left inshallah after this lecture, right? And again the same method of integration by parts would be used, most of that method. And in question number 5 inshallah I'll be letting you know about a different method, but that would again be related to integration by part, right? So let us get started with question number 4 first. Okay, this is question number 4. Up till 3 we were done, and then question number 4. In question number 4 you can see we have done these questions even before in the previous exercise by substitution method, but in this exercise inshallah we will be doing it by integration by parts, and this method is quite simple, and like all the questions are almost related, right? Except for this part. This question number 4 6 part is exactly the same. The method, the concept is exactly the same with this part. We did this previously on Friday, right? Question number 2 5th part, right? So this would be exactly the same, no difference, not at all. So let me get started with rest of the parts, and I haven't embedded the solution of these questions in today's lecture of question number 4, right? Because I'm gonna explain them to you people in detail inshallah. Okay, again this is integration by parts. If I called f of x as first function and g of x as second function, this is my first function, this is my second function, then integration by parts is first function into integration of second minus integral sign integration of second into derivative of first, right? And this is the sequence which we follow. Like if I'll be having inverse function, I'll be taking that as my first function. With logarithmic function तो वो second होगा, but मतलब like logarithmic function would never be second function too, it would always be first function. ये दोनों तो हमेशा first होते हैं, inverse and logarithmic, right? और उसी हिसाब से बाकी जो sequence given है, you have to take that function जो पहले आ रहे हैं, that would always be your first functions, right? But today as you can see, like a question which we have is in with radical sign and its algebraic function only. So of course whenever you'll be having radical sign like this, you will always be taking one with it, with the question, with the given question. Now this one is going to be my my second function, and this radical sign would be my first function. And we all know that how to apply the formula, like first function हमेशा उसी को लेते हैं जिसकी integration is difficult for us. So what am I gonna do? I'll be calling this function as my I. Okay, I. Okay, now what? I'm going to apply my integration by parts process. Okay, how? First function as it is into integration of second minus integral sign integration of second into derivative of first, और first था मेरा a square minus x square. Clear? Okay, now this function a square minus x square would remain, radical would remain as it is, और इसका जो integral है 1 का, we all know it is x minus integral sign. Okay, now again what is integral of this 1? We all know it is x into what is the derivative of this whole thing? That's what we have to find. कैसे find करेंगे derivative, right? अगर आप सबको याद हो radical sign है, so it would be 1 divided by 2 into a square minus x square, and further derivative would be multiplied of what? Of this a square minus x square. So a square minus x square जो radical के inside वाली चीज़ है उसका further derivative यहाँ लिखेंगे. What is the further derivative of that? It would be 0 minus 2x. Why 2x into dx? Why 2x? Because of this a square का derivative is 0 and x square derivative of x square is minus 2x. We all know, right? So when you will be multiplying these two brackets, you will see, okay, this 2 and this 2 would be cancelled out, right? Let me write it down again. Okay, now I'm not gonna write this 0 over here, so I'll be writing just minus 2x. Why? Because 0 minus 2x means minus 2x. Okay, now I can do some cancellation here. This 2 and this 2 are being cancelled out. Okay, now what do I have in the numerator now? I'll be having minus x square, right? और हर question में इस तरह के question number 4 के सारे parts में except for the last part, बाकी सब parts में
all you have to do is, you know, you'll be getting some of this term, like जो आपका denominator में variable है, you'll be getting that in the numerator, right? अब I got minus x square, as you can see. So what am I gonna do? As I have radical sign in the denominator, so I need radical sign in the numerator too. मैंने पहले भी बताया था, if I have like suppose I have x radical x in the denominator, मेरे पास अगर numerator में सिर्फ x बन गया है, so can I write it as radical of x into radical of x, और ये cancelled out, just this, you know, just this. So this is what I'm gonna do. What am I gonna do? मैं जो रेडिकल में चीज़ है डिनोमिनेटर में, वही न्यूमिनेटर में बनाऊंगी. एंड देन जैसे यहाँ पे था, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे होता, डिनोमिनेटर में होता रेडिकल ऑफ, यू नो, एक्स प्लस टू, और न्यूमिनेटर में मेरे पास सिर्फ x बन जाता, तो मैं प्लस टू माइनस टू करके, यू नो, उसको अलग अलग ले लेती, लाइक x प्लस टू डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ x प्लस टू माइनस टू डिवाइडेड बाई दैट. और वो मैं क्यों करती? ताकि इसको मैं ट्वाइस लिख सकूँ, न्यूमिनेटर को मैं ट्वाइस लिखती रेडिकल में, और ये कैंसिलेशन हो जाती फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, राइट? सो इन सब पार्ट्स में वी विल बी डूइंग द सेम, कि न्यूमिनेटर में वी विल बी मेकिंग द टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट? I hope this is understood. So I'll be doing this in the next step, inshallah, right? Let us get started with that. Okay, now I have I equals to, right, x, ये तो मेरे पास पहले ही था, a square minus x square minus, okay, now I had x square in the, sorry, minus x square in the numerator previously, और a square minus x square was in the denominator. ठीक है, ये तो मेरे पास था initially, like from the previous step. So what am I gonna do? I'll be adding a square and subtracting a square. ये मैंने add किया, ये मैंने subtract किया into dx, right? Now in the next step ये वाली चीज़ तो as it is आ जाएगी, a square minus x square minus integral sign. Okay, now what? What am I gonna do? A square minus x square whole divided by a square minus x square. ये वाली टर्म को इसके नीचे ले लिया, and then minus minus ये वाला क्या हो जाएगा, plus a square divided by radical of a square minus x square into dx, right? अच्छा, now what? Now you can see that x radical of a square minus x square, ये वाली टर्म तो as it is ये आ गई. What about this, the middle one? ये चीज़ क्या बन रही है? माइनस. कैन आई राइट इट एज रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? अभी मैंने समझाया कि कैसे, राइट? प्लस दिस ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा. And what about this? You know, 1 divided by radical of 1 divided by a square minus x square. अगर आपको याद हो, a square being the constant, right? और constant जो है मेरे पास 1, suppose like square of constant minus x square radical के अंदर. If you remember, it was formula of sin inverse of x over a, right? So ये जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ये तो उसका formula बन गया. Okay, fine. Let me clear some space for myself. Okay, I think I should go for the next page. Okay, now I was equal to x radical of a square minus x square, और यहाँ पे मेरे पास बन रही थी minus radical of a square minus x square as it is. This was plus a square was outside, and it was dx divided by radical of a square minus x square. Now if you remember, this is formula of sin inverse of x over a. Clear? What is it? Can you see? What is it? Don't you remember we gave this thing as a name to I, right? So this became I. हर क्वेश्चन में ये होगा, I आपके पास बनेगा, मतलब सेम क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो जाएगा. So what am I gonna do? I'll be replacing this whole thing with I, और ये हमेशा नेगेटिव में आएगा ताकि उधर जाके ऐड हो जाए, ठीक है? प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, इसका इंटेग्रल. टेक दिस आई टू द अदर साइड, सो इट यहाँ पे पहले ही आई है, आई प्लस आई वुड बिकम 2i इक्वल्स टू एक्स रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए. नाउ व्हाट? Now we all know that we want answer of only I, so 2 would be divided on right hand side, so we will be getting it this way. I is equal to x radical of a square minus x square हमारे पास था, 2 से डिवाइड हो गया, सॉरी ये क्या है, ओके, x square डिवाइड हो गया 2 से, एंड देन दिस was
यहाँ पे था हमारे पास ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, यहाँ से जो 2 आया यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, एंड दिस इज़ हाउ वी गॉट द इंटेग्रल. नाउ लेट मी टेल यू पीपल वन थिंग, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, या खैर ये सोल्यूशन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट का सोल्यूशन, बट दैट वाज डन बाय अस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप उसको इस मेथड से भी कर सकते हो, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड आई वुड से, राइट. ओके, सिंपल, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ए स्क्वायर है एंड हियर यू कैन सी है तो कांस्टेंट ही, यहाँ पे हमारे पास 4 है, बट एक और चीज़ भी है थोड़ी सी डिफरेंट, दैट दिस वेरिएबल गॉट अ कांस्टेंट टू. सो ऑल वी हैव टू डू इज़, फर्स्टली यू कैन कॉल दिस एज आई. ठीक है, इनिशियली आप उसको बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट करेंगे, आपने इसको आई कह दिया, ओके फाइन. नाउ यू हैव टू स्टार्ट इट विद लाइक आई 1 into this would be your first function, 1 would be your second function. you have to do integration by parts. so उसी तरह से बिल्कुल first function as it is मैं थोड़ा सा कर देती हूँ into integration of second which is your 1 minus integral sign integration of second into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए बिल्कुल उसी तरह से 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 5x स्क्वायर. ये तो आ गया. रेडिकल का मैंने आपको सिखाया हुआ है. रेडिकल का अगर हमारे पास होता था रेडिकल ऑफ x सपोज, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते थे, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेडिकल ऑफ x, ये तो होता था, और न्यूमिरेटर में उस x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता था, याद है. तो बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स पे, बिकॉज वी आर टेकिंग डेरिवेटिव सिंपली, सो उन्हीं ग्राउंड्स पे वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, राइट. ओके, अब डिनोमिनेटर का जो जो इंटेग्रल साइन के अंदर है 4 माइनस 5x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव वुड बी मल्टीप्लाइड अप हियर, राइट. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 4? इट इज़ 0. माइनस व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर? जाहिर है पावर रूल के मुताबिक 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 5 इंटू 2 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 1 का x का डेरिवेटिव इज़ 1, राइट. सो व्हाट इज़ इट, माइनस 10 x raised to the power 2 minus 1 1 into 1. so this would be the derivative, right, minus 10x. so I'm going to write it down in the numerator. okay, 0 minus 10x, right. अच्छा, अब हमें 0 की भी ज़रूरत तो नहीं है, 0 minus 10x means 10x. so आप अगले स्टेप में करिएगा, मैं इधर ही करने लगी हूँ, minus 10x, right. why did I do that? so that I can cancel out this 2 and this. okay, now let us complete it. It would be 4 minus 5x square into, what is the integral of this? We all know it is x, minus integral sign, what is the integral of this? It is x, into, what is it? Minus 5x divided by radical of 4 minus 5x square. यहाँ पे अब ज़रा गौर से देखिए, this is into this x and this x multiply हो रहे हैं, it would become minus 5x square. as I told you earlier if you remember, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में इंटेग्रल साइन के अंदर टर्म मौजूद है वही हम न्यूमिनेटर में बनाएंगे. अब न्यूमिनेटर में वी गॉट माइनस 5x स्क्वायर, एज यू कैन सी, राइट. मेरे पास 4 मैं ऐड करूँगी और 4 ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, बिल्कुल लाइक माई प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, सो आई वुड बी x रेडिकल ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस ओके इंटेग्रल ऑफ माइनस 5x स्क्वायर, एज आई टोल्ड यू मेरे पास बन गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आई स्टिल हैव 4 माइनस 5x स्क्वायर. यहाँ पे छोटा सा स्टेप है, वो उस बताने के लिए मैं आई एम कंप्लीटिंग दिस ऑल, लाइक डिटेल में जा रही हूँ. ओके, अगेन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपको ये टर्म ऊपर बनानी है, तो आपने 4 ऐड भी किया और 4 सब्ट्रैक्ट भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, राइट. अब आफ्टर एडिशन you can see this would become 4 minus 5x square, wait a minute, minus integral, this would become 4 minus 5x square divided by radical of 4 minus 5x square into dx. this minus and this minus, sorry, this minus would become plus, so this thing would become 4 divided by radical of 4 minus 5x square into dx, right. अब हमें इसका तो पता है, ये वाली जो टर्म है ये तो हमें पता है कि अगर ऊपर एक लाइक विदाउट रेडिकल और नीचे रेडिकल के साथ है, तो इट मीन्स दिस वुड बिकम 4 माइनस 5x स्क्वायर, वेट अ मिनट, माइनस दिस वुड बिकम रेडिकल ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर, 4 माइनस 5x स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगी. और ये चीज़ क्या है मेरे पास क्वेश्चन में, आप देख सकते हो ये वाली मैंने चीज़ आई की इक्वल ली थी. सो इट मीन्स आई एम गोना कॉल दिस डायरेक्टली एज आई. आपने पूरे स्टेप्स करने हैं, प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ओके नाउ लुक एट दिस थिंग,
हमें पता है ये होनी चाहिए थी रेडिकल ऑफ 1 ओवर रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, राइट। बट यहाँ पे वी कैन सी ये तो ए स्क्वायर है, चलो मान लिया किसी कांस्टेंट का स्क्वायर है, बट दिस टर्म इज़ अलॉन्ग विद द कांस्टेंट, दिस शुड बी ओनली एक्स, लाइक वेरिएबल होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है, अलजेब्रिक टर्म होनी चाहिए, बट इट हैज़ 5 टू। सो 5 को हमें यहाँ से हटाना है, खाली एक्स हमें चाहिए। वी हैव टू टेक इट एज कॉमन। इफ़ आई एम गोना टेक 5 एज कॉमन, सी okay, if I'll be taking my 5 as common, what would this become? देखिए मैंने 5 अब रेडिकल के अंदर से आएगा, ठीक है, सो रेडिकल ऑफ 5 मैंने ले लिया कॉमन, बट यहाँ पे दिस 4 डजंट हैव 5, सो इससे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? लेट मी राइट इट डाउन अगेन, दिस वुड बिकम आई इक्वल्स टू 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस 4 मेरे पास ऑलरेडी बाहर था, सो दिस वुड बिकम रेडिकल ऑफ 5 जो मैंने कॉमन लिया एंड डी एक्स डिवाइडेड बाय, ओके नाउ व्हाट, दिस वाज समथिंग 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो 4 वी कैन सी इज स्क्वायर ऑफ 2, है ना। बेसिकली मैं इसको अब स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ क्या बन जाएगा 5 whole square minus x whole square. We all know that dx divided by radical of a square minus x square किसके इक्वल होता है, it is equals to sin inverse of x divided by a, राइट, जो भी यहाँ पे a हो। अब हमारे पास a क्या बन रहा है, हमारे पास a बन रहा है 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 5, ये पूरे का पूरा। क्लियर? सो आई एम गोना अप्लाई इट ओवर हियर according to my question. If it is not like a square, it is 2 divided by radical of 5 whole square minus x whole square, तो ये क्या बन जाएगा sin inverse of x divided by a which is 2 divided by radical of 5, ये radical of 5 आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, so this would become sin inverse of x radical of 5 divided by 2। ये वाली टर्म का तो सोल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक हो गया। What about this minus I? This would go to the other side. It would become plus 2 plus I. So I plus I would become 2I and then I उधर ही रह जाएगा और 2 को आप इस टर्म से भी डिवाइड कर दोगे और जो इसका आंसर आएगा उससे भी डिवाइड कर दोगे, ठीक है। That would be our final answer. I hope this is understood. इतनी डिटेल में मैं इसीलिए गई हूँ। Okay, now look at this question. This is almost like not almost exactly the same, in fact exactly the same, but इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि वहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा था, बट इन दिस पार्ट यू कैन सी when it would be having dx divided by c, वहाँ पे था a square minus x square, थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है, it is x square minus a square, so whenever it would be x square minus a square, हम by the way ये प्रूव कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने ये किया है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा याद कर लेना और आसान है, याद करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, यही चीज़ एक और क्वेश्चन में भी यूज़ होगी अभी आगे। सो कैसे याद करना है कि इसको ज़रा फ़िलहाल भूल जाएं, कैसे याद करना है। ओके, लुक एट दिस, dx डिवाइडेड बाय अगर आपके पास हो, देखिए इसको तो हमने फाइंड करना है, रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम फाइंड करेंगे, बट इफ़ आई बी हैविंग समवेयर, जब मेरे पास बाद में जैसे अभी था आई बनने के बाद जब मेरे पास इस तरह से कोई टर्म आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे तो हमें पता था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए का फॉर्मूला था, बट दिस इज़ नॉट द फॉर्मूला ऑफ दैट थिंग। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ये वाली चीज़ एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। Clear? Once again check this out, what is it, this is radical of dx divided by radical of x square minus a square। तो जब ये यूज़ होगा हम इसकी जगह क्या लिख देंगे कि इसका आंसर होता है ये होल चीज़, ठीक है, सॉरी दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेडिकल प्लस सी। क्लियर? अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, विच इज़ दिस वन, यू कैन सी इसमें प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है सपोज। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो, इसका इंटेग्रल क्या होता है, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस यही वाली पूरी की पूरी चीज़ जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा जो आपके पास वहाँ पे बना था, आई ही बनेगा, उसको आप उस तरफ ले जाएंगे, जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो उसकी जगह आपने ये लिख देना है।
दैट्स इट, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आई एम गोना डू वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, आई थिंक आई शुड बी डूइंग दिस। एक क्वेश्चन कर देते हैं। ओके जी, फिर से हम आई लेंगे क्वेश्चन के इक्वल जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। व्हाट एम आई गोना डू अगेन, radical cannot be taken as my first second function, so I'll be taking 1, sorry this is not I, this is 1 into this, 1 being my second function, this being my first function. So let us apply integration by parts. And how would that be applied? Like, you know, first function, which is x square minus a square, into integral sign derivative of second minus integral sign derivative of second into, sorry, integral of second into derivative of first function, right? So it would be x square minus a square into, what is integral of 1? It is x, minus integral sign, what is integral of 1? It is x, into, what is the derivative of this? बिल्कुल उसी तरह 1 divided by 2 radical of x square minus a square, राइट। अच्छा, अब डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इनसाइड, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे न्यूमिनेटर में, सो दैट वुड बी 2x माइनस ए स्क्वायर है विच इज़ 0, सो आई एम गोना जस्ट राइट 2x राइट ओवर हियर, राइट। अगेन 2 and 2 कैंसल्ड आउट, न्यूमिनेटर में यू कैन सी वी गॉट एक्स स्क्वायर। अब हम न्यूमिनेटर में क्या बनाएंगे, जो नीचे वाली टर्म है, नीचे हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में यू कैन सी वी गॉट नॉट 2, वी गॉट एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में आई गॉट एक्स स्क्वायर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस, ये रेडिकल के अंदर है सॉरी, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है, सो मैं माइनस ए स्क्वायर भी करूँगी प्लस ए स्क्वायर भी करूँगी। अगेन इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले को आप इसके नीचे ले लेंगे, एंड देन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये अलग से ले लेंगे। क्लियर? आई इज़ इक्वल टू एक्स, ये तो ये टर्म बन गई थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, एज आई टोल्ड यू, radical of, you know what, radical of what we had, if you remember, x square मेरे पास बना था divided by, sorry this is not plus, is it plus or minus? if it's minus, यहाँ पे भी minus है, sorry, ठीक है। अच्छा, x square minus a square, नाउ आई गॉट दिस थिंग इन द डिनोमिनेटर, मुझे न्यूमिनेटर में भी यही चीज़ बनानी, तो मैंने माइनस ए स्क्वायर किया फॉर दिस थिंग, तो मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, जाहिर है मेरा अपना वो घर तो नहीं है, मुझे जो ऐड करूँगी वही सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, सो इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटेग्रल साइन, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप उसके साथ ले लें नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। और ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस कैंसिल, सॉरी मल्टीप्लाई होंगे, सो इट वुड बिकम माइनस ए स्क्वायर, बाहर ले लिया मैंने, इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस, हमें पता है ये वाली जो चीज़ है ये बन जाएगी हमारे पास एक्स रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, लाइक खाली रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड वी विल बी राइटिंग दैट एज व्हाट, आई, है ना, माइनस what about this whole thing, ये क्या बनेगा, as I told you earlier, a square as it is into natural log of, ये क्या है यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, natural log of x plus radical of x square minus a square plus c। क्लियर? और यहाँ पे जो मेरे पास ये i बना हुआ है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, टू द अदर साइड, उस i के साथ ये प्लस हो जाएगा, इट वुड बिकम 2i, और ये फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू पीपल, 2i बन गया, और ये था x रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज़ माइनस अगेन बता रही हूँ, एंड देन माइनस ए स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। ओके, अब ये i के साथ जो 2 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट्स इट, डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये सी डैश है, मतलब सी डैश डिवाइडेड बाई 2 वुड बिकम सी ओनली, तो आप इसको सी डैश भी छोड़ सकते हैं और इस तरह भी छोड़ सकते हैं। दिस इज़ योर फाइनल सोल्यूशन, राइट। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट, अगर फिर भी कोई मसला हुआ डू आस्क मी। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है, आप इसमें क्वेश्चन आपके पास बाय द वे ये है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग दिस एज आई, इसके साथ 1 ले लिया, बिल्कुल उसी तरह दिस वुड बी 1 वुड बी योर सेकंड फंक्शन, दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन, और बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स पे करना है, एंड व्हेन यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, उसकी जगह आप ये पुट कर लेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन दिस।
Okay, last part, not this, sorry, last part of question number 4. दिस वन, ये भी मैं थोड़ा सा गाइड करके, बिकॉज दिस इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट, बिल्कुल वैसा है, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था. वी ऑल नो आई लेट के मुताबिक, यू नो, दिस इज़ योर, एज यू कैन सी, दिस इज़ योर अल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में. डेफिनेटली अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, दिस वुड बी योर फर्स्ट. एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, दिस वुड बी योर सेकंड. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दैट. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट एंड दिस इज़ माई सेकंड फंक्शन. I is equal to, okay, I'm going to apply my integration by parts. So x square as it is into, क्योंकि वो first function है, into integral of second function minus integral sign integration of second function into derivative of x square, मतलब first function, right? एक step और कर देती हूँ. x square into, what is the integral of this? We all know e(ax) as it is into divided by further derivative minus integral sign. क्या होता है इसका इंटेग्रल? अभी भी हमने निकाला, e(ax) as it is divided by further derivative, okay, which is a. What is the derivative of x square? We all know it is 2x. क्लियर. नाउ 2 डिवाइडेड बाई a बाहर आ जाएगा हमारे पास, और फिर x इंटू रेडिकल लाइक इंटेग्रल ऑफ x इंटू ई रेस टू पावर ax रह जाएगा. अगेन आप x वाली टर्म जो है उसको आप कह देंगे फर्स्ट फंक्शन. ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये फिर से सेकंड फंक्शन होगा, और दोबारा से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ डू आस्क मी डायरेक्टली. Right, I'll be I can even solve the question and send it to you people directly. Okay, so I hope this is understood. So I'll be meeting you people inshallah in the next video with question number 5. Till then, Allah Hafiz.